नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। अविश्वास प्रस्ताव का दांव चला है विपक्ष ने। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर सीधा हमला हुआ। सदन में मेरा अपमान किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, माइक बंद करके ये अपमान किया गया है। खड़गे ने अपनी बात रखी है। तो आपको बता दें, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया गया है। उसके साथ ही साथ 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही जो है वह स्थगित कर दी गई थी। इसी के साथ साथ कई तरह से जो आरोप हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लगाए हैं। कहा है कि मेरा स्पीकर बंद कर दिया था, मेरा माइक बंद कर दिया था, इससे मेरा अपमान किया गया है। मैं ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए। मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा साहब डेमोक्रेसी नहीं है। इधर राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई है। आपको सीधे लिए चलते हैं। एक प्रति सभा पटल में रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 61 ऑनरेबल मिनिस्टर, बोलिए ना। प्रति सभा पटल में रख दिया गया। श्री हेगड़े सप्लीमेंट्री नंबर 1। whether the government thinks that Sit down. Supplementary number 1. whether the government Mr. Hegde, your supplementary. sir in the context of मेरा पैबीज सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित कागजात को सभापटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री दानवे राव साहब पाटिल। मैं आज के कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित कागजों को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 साध्वी निरंजन ज्योति। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 6 श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 6 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 7 श्रीमती दर्शना जरदोश। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name, serial number 7, related Ministry of Textile, as per the today's revised list of business. आइटम नंबर 8 श्री देवी सिंह चौहान। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 8 in today's revised list of business. आइटम नंबर 9 महासचिव। Sir, I have to report that Rajya Sabha has returned the Constitution Scheduled Tribes Order 5th Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha with amendments. Sir, I lay on the table the Constitution Scheduled Tribes Order 5th Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha and returned by Rajya Sabha with amendments. Item number 10, Dr. Jitendra Singh. Dr. Jitendra Singh. Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a statement regarding A, the status of implementation of the recommendations oblique observations contained in the 126th report of the Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice Demand for Growth 2023-24 pertaining to the Department of Personnel and Training, Ministry of Personal Public Grievances and Pensions. B, the status of implementation of recommendations pertaining to the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Department of Pensions,
Ministry of Personnel, and C, the status of implementation of recommendations of 367th report pertaining to the Ministry of Biotechnology. ये 2-3 विभाग इकट्ठे हो गए, इसलिए थोड़ा समझ ले रहा हूँ सर. Pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology. D, the status of implementation of the recommendations, observations contained in the 369th report pertaining to the demands of grants, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. Fifth, the status of implementation of the 374th report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate Change pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology. And sixth, the status of implementation of the recommendations contained in the 375th report pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research, CSIR, Ministry of Science and Technology. धन्यवाद. माननीय सदस्यगण, सदन की गरिमा रखो. ये भारत की संसद है. आप इतने पुराने दल हो, आपका इस तरह का व्यवहार ठीक लगता है क्या? कुछ गरिमा रखो सदन में. आप गरिमा को गिराना चाहते हैं सदन में. इतने साल में शासन करने के बाद आपको ये व्यवहार सिखाया है. आइटम नंबर 12, श्रीमती दर्शना जरदोश. Rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 37th report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on the development of man-made fibre pertaining to the Ministry of Textile. आइटम नंबर 13, श्री सोम प्रकाश जी. Sir, with your kind permission, I make statements regarding number 1, the status of implementation of the recommendations contained in 172nd report of the Standing Committee on Commerce on promotion and regulation of e-commerce in India pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. Number 2, the status of implementation of the recommendations contained in the 175th report of the Standing Committee on Commerce on action taken by the government on the recommended observation contained in 168th report of the Committee on demand for grant 22-23, demand number 11, pertaining to the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. Thank you, sir. तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक चौबे इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. दीपक, देखिए, एक बार फिर से सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस है वो सर्व कर दिया गया है. लेकिन यदि हम देखते हैं, जाहिर सी बात है 2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, सरकार ने बहुमत साबित कर दिया था और अभी भी सरकार बहुमत साबित कर सकती है. 335 यहाँ पर सांसद मौजूद हैं एनडीए के. बावजूद इसके ये नोटिस सर्व किया, इसके पीछे मंशा क्या है, इस पे हम चर्चा करते हैं. दीपक जी बिल्कुल. और दीपिका, देखिए, इससे पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 2018 में जब ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदनों में आकर संबोधित किया था. और इस अगर बात की जाए तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का सिर्फ और सिर्फ अगर कहा जाए तो विपक्ष का एक ही है कि दोनों सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर पर चर्चा करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए. हालांकि लगातार सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, इससे पहले अगर बात की जाए तो पीयूष गोयल ने कहा था कि ये पूरे प्रकरण की जो जांच है वो चल रही है और इस पूरे मामले की को लेकर गृह मंत्री अमित शाह खुद लोकसभा और राज्यसभा में संबोधित करेंगे. हालांकि अगर बात की जाए तो कल देखिए, कल अधीर रंजन चौधरी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को, दोनों लोगों को गृह मंत्री अमित शाह ने लेटर भी लिखा था कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है. पर क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि जब वो बोले, हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या जिस तरीके से आज जो पेश किया गया उसके बाद ये इस पर चर्चा कब होगी. जिस दिन इस पर चर्चा होगी उसके बाद प्रधानमंत्री, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. सत्ता पक्ष चाह ही रही है कि हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष की अपनी मांग है कि प्रधानमंत्री इस पूरे मुद्दे पर, मणिपुर पर बयान दे. नमित त्यागी में संवाददाता वो भी जुड़ रहे हैं. दीपक, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं. नमित, देखिए, हम दीपक से भी यही बात कर रहे हैं कि जो नोटिस है अविश्वास वो सर्व कर दिया गया है, लेकिन इसके पीछे जाहिर सी बात है, सबको पता है, हमें भी पता है, आपको पता, यूं कहे विपक्ष को भी पता है कि साफ तौर पर देखा जाए
If the speaker would permit, I could read out in detail as to what are the reasons for this, for opposing the bill. But these are my three fundamental objections, Mr. Speaker, sir. अधीर रंजन जी, आप बोलना चाहते हैं? प्रश्न ये कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, आप विधेयक को पुनर्स्थापित करें। मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 15 श्री अधीर रंजन चौधरी जी। अधीर रंजन चौधरी जी, नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 16 श्री नित्यानंद राय जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। Sir, I oppose introduction of the bill. Sir, on the ground is that J&K Reorganization Act is a constitutionally suspect law. It is judicial security is being determined by the apex court. Even hearing has commenced. So you cannot, it is against the constitutional propriety and constitutional morality. You cannot amend an act that is under judicial security, which is constitutionally suspect law. Sir, Jammu and Kashmir Reorganization Act is being examined. It is constitutionally is being examined by the Supreme Court, and hearing is from 2nd August. Day-to-day hearing. Sir, it is better to stop the introduction, because I oppose the introduction. I oppose the introduction on the ground that it is constitutionally suspect and constitutional does not permit the introduction of the bill. Sir, that is my objection to the introduction. की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी, विधेयक को प्रस्तावित। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूं। आइटम नंबर 17 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 18 श्री अर्जुन मुंडा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 1989 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 19 श्री प्रहलाद जोशी जी। Sir, with your permission, I rise to move for a leave to introduce the bill further to amend the Mines and Mineral Development Regulation Act 1957. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। एनके प्रेमचंद्र जी। Sir, I strongly oppose this bill
Mines and Minerals Development Amendment Bill 2023. It is against the principles of federalism, and it is for privatizing the atomic minerals, mining and mineral separation, privatization for the big corporates, and it is adversely affecting the public sector undertakings like IRE, KMML, TTP and all these. So it is for the privatization for the multinational corporations. It is affecting the security and the safety of the nation, and it is against the federal principles because item number 23 in Schedule 7 of the Constitution, it is violation of the state government's authority so as to give the mining license for the mineral separation and the mining license. So I strongly oppose this bill. Please withdraw this bill. Don't give the permission because it is unconstitutional, ultra violates the states' rights. So I totally, strongly oppose the bill in introducing this bill. सर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, the clear position is that introduction of the bill can only opposed under the Rule 72 on the ground of legislative competence. This House has full legislative competence, sir. The Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957 was enacted under the exclusive power of the Parliament under entry number 54, list 1, that is central list under 7th schedule, sir, to the Constitution of India. As regards the contention of member who is opposing introduction of bill, it is stated that तो अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है स्पीकर ने। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, देखिए, जो इंतजार विपक्ष को था कि अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाए, अब हो भी यही गया। अब कुल मिलाकर देखा जाए, जो इच्छा थी वह अब साफ जाहिर भी हो गई है कि अब संसद में आएंगे, मौजूद होंगे और एक लंबी चर्चा प्रधानमंत्री करेंगे, जिससे जवाबदेही उनकी तय करे विपक्ष। बिल्कुल, और देखिए, इससे अगर कहा जाए तो विपक्ष को जो है वो फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं बता दूं आपको कि 2018 में टीडीपी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था। हालांकि अगर बात की जाए तो 10 दिनों के अंदर अंदर ये अगर बात की जाए तो सदन में चर्चा होगी, और मिनिमम अगर बात की जाए तो 24 घंटे तक ये चर्चा हो सकती है, जिसमें विपक्ष को सबसे ज़्यादा, हालांकि अगर बात की जाए तो क्योंकि सरकार के जो सांसद हैं वो ज़्यादा हैं लोकसभा में, फिर भी विपक्ष को ज़्यादा मौका मिलेगा बोलने के लिए। जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष है वो चर्चा की मांग कर रहा था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं एक, अगर कहा जाए तो एक कूटनीति जीत जो है वो विपक्ष की हुई है। हालांकि अगर बात की जाए तो जो बीआरएस का जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर अभी तक स्पीकर ने नहीं सुना। हो सकता है कि क्योंकि उनको लेट मिला होगा लेटर, तो अब उस पर भी सुनवाई है। तो ये एक बीजेपी, अगर बात की जाए तो विपक्ष के लिए जो है वो प्लस पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। अब ये देखना होगा कि इस पे चर्चा किस दिन होगी और इस पे वोटिंग किस दिन होगी। ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कौन कौन से जो दल हैं वो वोटिंग करेंगे। हालांकि बात की जाए तो पिछली बार जब टीडीपी ने वोटिंग किया था तो प्रधानमंत्री जब बोलने आए थे उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी तो थोड़ी बहुत हुई थी, पर इस बार जो है सरकार जो है वो फ्रंट फुट पे है, लगातार फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश भी कर रही है कि हम तो चर्चा चलिए, नमित भी मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। नमित, देखिए, जो बात विपक्ष लगातार कर रहा था कि एक लंबी चर्चा मणिपुर को लेकर हो, ऐसा होता नजर आया है, और यही एक यूं कहें कि विपक्ष चाहता था कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रखें, एक लंबी चर्चा की जाए और उनकी जवाबदेही तय हो पाए। देखिए, बिल्कुल जैसे ही मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी उसी दिन ये मणिपुर का वीडियो सामने आ गया था, और उसके बाद से लगातार जो विपक्ष है वो पीएम मोदी को कह रहा है कि आप संसद के अंदर आकर इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए। जब ऐसे बात नहीं बनी, विपक्ष ने लगातार हंगामा किया, तो विपक्ष ने दूसरा नया पैतरा यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर जो विपक्ष है वो आ गया है। और आपको भी जानकारी है और सबको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव अगर पेश होता है संसद के अंदर तो उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देना होगा। तो ऐसे में खुद विपक्ष चाह रहा है, क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि अगर काउंटिंग होगी तो वहां पर विपक्ष जो है वो औंधे मुंह गिर जाएगा। लेकिन उनकी जो दूसरी इच्छा है यानी कि पीएम को आकर मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, ये शायद इच्छा उनकी पूरी हो जाए। हालांकि इस पर जो है जो अधीर रंजन चौधरी हैं उन्होंने लोकसभा के अंदर जो है अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा स्पीकर को दे दिया है। अब लोकसभा स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब इस पर चर्चा करेंगे और इसके बाद जो फ्लोर पर काउंटिंग होगी। हालांकि वहां पर तो एनडीए के पास बहुमत है, 300 से ज्यादा सांसद उनके पास है, लेकिन निश्चित तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी
मोदी को आकर इस पर बयान देना होगा, क्योंकि विपक्ष के सुबह भी कई सांसदों से हमारी बातचीत हुई, राघव चड्ढा से हमारी बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि हमें भी पता है कि आंकड़े हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास एक यही रास्ता था पीएम नरेंद्र मोदी को आकर संसद में बोलने के लिए आगाह करने का। तो निश्चित तौर पर, और आज सुबह भी हमने देखा संजय सिंह जो कि निलंबित सांसद है राज्यसभा। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिसको मंजूरी स्पीकर ने दे दी है। अब जो विपक्ष चाह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर हिंसा को लेकर एक लंबी चर्चा करें, एक लंबा बयान दें, उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से उनकी जवाबदेही तय की जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए, पहले विपक्ष ये कह रहा था कि हर चीज जीतने के लिए नहीं होती, हमेशा अविश्वास प्रस्ताव जीतने के लिए नहीं होता। ये हमें पता है कि हमारे जो सांसद हैं वो कम हैं, एनडीए के सांसद ज्यादा हैं, 335 सांसद लोकसभा में एनडीए के हैं। और आपको याद होगा कि 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तब भी यहाँ पर 325 जो सांसद थे वह बीजेपी के थे। चलिए, अब ये देखना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा की तारीख है वो कब तय हो पाएगी। इसी के साथ मैं इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।